गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सेकेंड शिफ्ट जेई 2 सितंबर का डिस्कशन लेके आए हैं। सो वी विल स्टार्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज एरिया ए, टाइम टी एंड मोमेंटम पी assumed to be fundamental quantities, then dimensional formula for energy is. There were 4 options given. So as you know, the energy E is directly proportional to area to the power A, time to the power B and momentum to the power C. So energy, you know the dimension of energy, ml square t minus 2. This is dimension of energy, that is k times of area means L square की power A and time t to the power B and momentum is nothing but this is momentum m into V, that is ml minus 1 ml t minus 1 to the power C. So separate these equations, separate m to the power 1 L square t to the power minus 2 m to the separate m to be turned out C and L to the power 2a and this one is C and time t equal to power B and this one minus C. So separate out and comparison these m L t power. So m C equal to 1, directly you can see C equal to 1 and this one 2a plus b equal to 2 and you know the value of c equal to 1, 2a plus c equal to 2, then 2a equal to this one 1, a equal to 1 by 2. You know the value of c and a, the only thing remaining is b. So you know the value of b minus c, compare with minus 2, that equal to minus 2, b equal to minus 2 plus c, minus 2 plus c equal to 1, that is minus 1. So our answer is a to the power 1 by 2, b, what is the value of b, minus 1 and c equal to 1. So which option is correct? A to the power 1 by 2, t to the power minus 1 and p equal to 1. Option D is correct. So option D is correct. देखो कितने आसान से क्वेश्चन आए हैं. So only thing is about the basic concept and all. So let us discuss about question number 2. It is given that electric field and magnetic field and electromagnetic wave. You know the electromagnetic wave, electric field is this one and magnetic field is this one magnetic field and this one electric field, both are mutually perpendicular and asking for, it is given that the direction of electric field vector is a cap and b magnetic field I minus j cap. So it is asking for unit vector along the direction of wave propagation. It means this one electric field and this one magnetic field. So you need to find out the unit vector direction in the direction of wave propagation. It means, sir, E cross B perpendicular. So I j k. What is the value of B electric field? Sir, 0I plus 0j plus 1k. And this one is 1 minus 1 and 0. So what will be the A cross B, E cross B? That is I, this one 0 minus minus plus and minus j. So 0 minus 1 plus k, this one is turned to be 0. So I minus j, asking for unit vector. So divided by root 2 या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो I minus j divided by root 2. Which option is correct? It is very easy question. Just you have to find out A E cross B and asking for unit vector. So option A is correct, I minus j by root 2. So next proceed question number 3. In this question
a capacitor of capacity 20 microfarad is charged up to 50 volt and disconnected from a cell. Now this charged capacitor is connected a uncharged capacitor having capacity of capacitance C. So it is given asking for common potential. It is also given common potential of this arrangement is 20 volt. So you need to find out this capacitor of capacity C, capacitance C. So you know the value of common potential at that is Q, V बराबर Q by C, मतलब it is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. Actually common voltage is nothing but total charge divided by total capacitance. So it is given that C equal to 20 microfarad into V, voltage is 50 and C2 into uncharged, this is uncharged divided by C1 plus C2, 20 microfarad plus C. We assume that C2 is nothing but capacitance of capacity C, that is 20. So you need to find out. So this becomes 10 to be 0, minus 6 will be cancelled out. So cross multiply it. So value of CB2, suppose microfarad, so it turned to be 30 microfarad. After solving C, it turned to be 30 microfarad. So correct option is 30 microfarad. The capacity of uncharged capacitor is 30 microfarad. So question number 4. In this question it is given that Young's modulus of a string of length 1 meter, that is L, density is 900 kg per meter cube, is this one. It is given that Young's modulus Y, capital Y. Find out resonance frequency in hertz. So you know the value of resonance frequency F equal to 1 upon 2L under root of T by mu. So 1 upon 2L under root of T by mu is nothing but rho into A, and this one is nothing but 1 upon 2L under root of Y delta L by rho by L. So you need to find out frequency. So what will be the frequency? 1 upon 2 into 1. It is given that length is 1 under root of Y delta A. Y is given Young's modulus of string 9 into 10 to the power 9, and it is also given delta L by L is nothing but 4.9. Delta L by L is nothing but 4.9 10 to the power minus 4 divided by rho, density of material is given 900. So it will be turned out 10 to the power 2 and 10 to the power minus 2. This is 7. So after solving this, the frequency turned to be out. It is almost 70 by 2, that is 35, around 35 hertz. So this will be the resonance frequency of this string. So correct answer is 35 hertz. Correct answer is 35 hertz. So in this question there are an arrangement as shown in figure. It is asking for at steady state the potential difference between point P and point Q. At steady state the potential difference between point P and Q will be. So you know the very well, at steady state there will be no current passing through this capacitor. So it is useless. You can say this one you can easily remove from this circuit. So easily remove from this circuit. So you need to find out, suppose this one is I current delivered by the battery and this one is I1 and this one is I2. So you need to find out first the current drawn by the battery I is. So these two circuit in resistor,
So R equivalent is nothing but 4. So this one is a 4 and this one is a 2. So you need to find out equivalent resistance. This is 10 volt battery, this is 4 ohm, this is 2 ohm, this is 2 ohm. So this 4 ohm and this 2 ohm are in parallel. So 1 upon R equivalent 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R1 is nothing but 1 by 4, ये R2 is 2. So it turned to be out 4 1 plus 2, that is 3 by 4. या R equivalent 4 by 3, and this equivalent is combination with 2 ohm, that will be in series. So R equivalent is nothing but 4 by 3 plus 2, that is 10 by 3. So R equivalent you can easily get 10 by 3 ohm. So how much current drawn by the battery is, so current is equal to voltage divided by resistance, equivalent resistance 10 by 3, that is equal to 30 by 10, that is 3 ampere current. From this is I equal to 3 ampere current. So this one is I 3 ampere. So how much current this and this circuit, yeah, you can say I is equal to 3 ampere. So potential will be the same. Suppose this one is I2 and this one is I1. Potential will be the same. You know the very well. Potential will be same. It means I2 into 4 is nothing but I1 into 2. Yeah, I1 plus I2 equal to this one. Yeah, I1 by I2 equal to 2. Yeah, I1 equal to 2I2. I1 equal to 2I2. It means I1 equal to 2 ampere and I2 equal to 1 ampere. This summation I1 plus I2 becomes 3. 2 ampere plus 1 ampere, that going to be turned out 3 ampere. So how much voltage across P and Q? So V of PQ is nothing but this current is drawn, this in this circuit current is flowing 2 ampere 1 ampere. So minus that 2 into 1 plus 3 into 2, it turned to be out 8 voltage drop. The answer is, correct answer would be 8 volt. Correct answer would be 8 volt. All right, hope you got understand this problem. So this is the logic gate based question. So it is given that suppose there are 4 input, you can add it. There are A, this one is AND gate plus NOT gate, this one is OR gate plus NOT gate, this one is AND gate, then this one is the OR gate plus NOT gate. So you need to find out what will be the out to be turned out. So how to solve this problem? So there are A and B, there are 2 input A and B. So A 0 0 1 0 0 1 and 1 1. There are 4 possible way that you need to be fill A and B. So first thing, this one is B, this one is turned to be A into B ka bar, and this one is turned to be out A plus B to the power bar. So you need to find out A into B का बार. A into B का बार कितना होगा? 0 0 into 0 0 1. So it will be the turn to be out 0, that is 1. Turn to be out 0, that is 1.
टेन टू बी आउट 1 दैट इज 0, a इंटू बी का बार, सो a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार, सो a प्लस बी 0 प्लस 0 0, 0 का 1 दैट इज 1, 1 का 0 दैट इज 1, 1 का 0 दैट इज 1, 1 का दैट इज 1, 1 का 0. So third step, in the third step, so these two input a into b का बार and this one a plus b का बार, this one AND gate, it means a into b का बार into a plus b into a plus b का बार. So you need to just multiply it, these two things, that is 1, that is 0 0 0. So this one is output vector p, output is p. So a into b is going to be there, a into b का बार, a into b का बार, and this one is OR gate. It means adding these two one, adding these two one, this one turn to be out p and this one a into b का बार. So you need to be add first 1 into 1 1, 1 into 0 1, sorry 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0. So it would be the suppose q, and finally there is a not vector, it means q bar. You need to find out q bar, then it tend to be out 0 0 0 1. So out of 4 option, which option is correct? So it is simply 3 0 first and 1. So option A is correct. It is basically logic gate question, आप ये आराम से कर सकते हो. So this is one of the problem asked yesterday exams. क्या बोल रहा है, a square of side a by 2 is removed from a disc having radius a. साहब एक डिस्क है, there is a cut, that side is a by 2 is removed from this one. So remaining part, what would be the center of mass of remaining part? You know the center of mass of remaining part, that is a1 x1 plus a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2. या यूँ कहें, अगर कोई चीज़ सिस्टम से काट के निकाली गई है तो साहब यहाँ पे माइनस होता है. आपको सारी वैल्यू पता है. दिस वन इज a, डेट इज एरिया कितना होगा सर, पाई a स्क्वायर. व्हाट वुड बी द सेंटर ऑफ दिस होल मास? सपोज डिस्क इज देयर, तो सेंटर ऑफ मास वैल्यू इज 0, x की वैल्यू क्या होगी 0, माइनस a2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एरिया कितना है सर a बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड x2 इज नथिंग बट a बाई 2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2. इट मीन्स पाई a स्क्वायर माइनस a2 इज नथिंग बट a बाई 2 का होल स्क्वायर. दिस वन इज सेंटर ऑफ मास ऑन x बार. कोई चीज़ काट के निकाली जाती है तो इसको ऐसे करते हैं ना बेटे. तो यहाँ पे सर ये वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ पे अगर देखो a क्यूब बाई 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितने हो गए सर, पाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4. तो आपके पास वैल्यू कितना, a स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो इट टर्न टू बी आउट, a स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई माइनस 1 बाई 4, एंड दिस वन वुड बी वैल्यू क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर. दिस वन इज a स्क्वायर कॉमन, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आई, माइनस में आएगा. इट टर्न टू बी आउट माइनस a बाई 8 पाई माइनस 2. सो x बार इज नथिंग बट, चारों ऑप्शंस यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिए थे, माइनस में सब था. आपको ऐसे भी देख के कोई ऑप्शन नहीं बता सकते थे, क्योंकि सब इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, निगेटिव साइड.
तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ये। तो करेक्ट आंसर इज बी -a डिवाइडेड बाई 8 पाई -2, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। सो इन दिस प्रॉब्लम इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज 100 ओम दिया है, मतलब सर ये L की वैल्यू दिया है, फेज डिफरेंस दिया है 45 और सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। फाइंड आउट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, ऑल राइट, आपको L की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, tan थीटा 45 फेज एंगल दिया है सर tan फाई बराबर एक्सीएल डिवाइडेड बाई R। अब ये R की वैल्यू मतलब सर एक्सीएल इक्वल टू R, इसकी वैल्यू कितना सर 100 ओम दिया है बेटे, 100 ओम दोनों की वैल्यू है। अब आपको क्या पता है सर, हमें ये पता है कि जो नेट रिजल्टेंट होता है या इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट दिया है 100 हर्ट्ज, सॉरी ये R की वैल्यू, यहाँ पे इम्पीडेंस Z दिया है बेटे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती सर एक्सएल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू एक्सएल और R दोनों बराबर हैं, दिस इज गिवन दैट 100 ओम, दिस एक्सएल इक्वल टू सर XR बिकॉज tan फाइव फेज एंगल कितना 45, तो tan 45 की वैल्यू tan 45 एक्सएल बाई R, इसका मतलब सर एक्सएल इक्वल टू R, मतलब क्या 2R स्क्वायर लिखा जा सकता है, यस सर। इसका मतलब सर यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू अगर निकालो तो लिख सकते हो 100 बराबर √2R या R बराबर 100 बाई √2, 100 बाई √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इट टर्न टू बी आउट 100 √2 डिवाइडेड बाई 2 या 50 √2 आ गया, 50 √2, एक्सएल की वैल्यू हो गई 50 √2। सर हमें पूछा था एक्सएल बराबर ओमेगा एल, सर एक्सएल बराबर हमें पता है ओमेगा एल, सर एक्सएल की वैल्यू हमें पता हो गई 50 √2 ओमेगा 2 पाई एफ की वैल्यू दिया है फ्रीक्वेंसी टर्न टू बी आउट 1000 इंटू एल, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 50 √2 डिवाइडेड बाई 50 √2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1000, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी भाई सर, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपके पास इट टर्न टू बी आउट दिस वन इज मिली हेनरी, मिली कर सकते हो बेटे, 10 की पावर 1000 था तो मिली हेनरी, और ये वैल्यू 25, तो कितना आ जाएगा 25 √2 डिवाइडेड बाई पाई मिली हेनरी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 बाई पाई √2 मिली हेनरी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो वन मोर क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ v, इट इज गिवन दैट वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इट टेक्स 10 रिवोल्यूशन बिफोर कम्स टू बी रेस्ट, 10 रिवोल्यूशन में रेस्ट पे आ जा रहा है, तो एक बात बताओ कितना दूरी L चलेगा, ये पूछ रहा है L की वैल्यू क्या होगी, मतलब सर पिच निकालना है, सिंपली पिच निकालना है, तो सर L की वैल्यू क्या हो जाएगी सर u cos थीटा इंटू टी, और t बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी जानते हो, और मल्टीप्लाइड बाई 10 रिवोल्यूशन के बाद पूछ रहा है, मतलब अगर सर ऐसे जाए कितना रिवोल्यूशन 10 रिवोल्यूशन करेगा, तो यहाँ छोड़ा गया तो 10 रिवोल्यूशन 1 2 3 ऐसे 10 रिवोल्यूशन, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी u cos 60 1/2 2 पाई mv m इंटू एम की वैल्यू 2m है बेटे, इंटू v डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू सर 10, तो L टर्न टू बी आउट 2 ने 2 को मार दिया, वैल्यू क्या आई L टर्न टू बी आउट 2 पाई mv, दिस इज v cos थीटा, देयर इज नो नीड टू बी राइट इट डाउन हियर, सो इट टर्न टू बी आउट 20, this 10 into 20 pi m into v divided by qb,
So L tend to be out 20 pi mv divided by qb. Which option is correct? Sorry. So option B is correct. 20 pi mv divided by qb. So एक क्वेश्चन और आया है. It is comes from YDSC setup. आपको बोला है कि there is a wavelength of 700 nanometer and there are n number of n1 is equal to 6. So if this wavelength is replaced by 400 nanometer, so total number of fringes would be. तो आपको पता है n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2. So asking for n2, तो n2 be tend to be out n1 lambda 1 by lambda 2. n1 how much given? 60 into lambda 1 700 nanometer 10 to the power minus 9 upon lambda 2 400 10 to the power minus 9. ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 सत्ते 42 42 बाई 4 इट टेन टू बी आउट 10.5. इसका मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली देयर इज मिस्टेक इज 16. सो इट टेन टू बी आउट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1 700 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर. तो नैनो नैनो कैंसिल हो जाएगा. ये 16 इंटू 7 बाई 4 4 7 चौक 28 28. The answer turned to be out 28. The total number of image will be formed out. Total number of fringes will be formed out 28. So there are two set of question. One is a rod is heated from 0 to 100 centigrade. डेल्टा L दिया है 0.02%. बाई वाट परसेंट ऑफ चेंज ऑफ मास डेंसिटी. तो सर हमें पता है डेल्टा L इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी. अल्फ़ा L डेल्टा टी ये आपको पता है डेल्टा L बाई L. सर डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा L अल्फ़ा निकाल लो बेटो. अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा टी. सर ये वैल्यू दिया है 0.02 डिवाइडेड बाई 100 इंटू डेल्टा टी कितना है सर? 10 है. तो ये वैल्यू इट टेन टू बी आउट 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये -5 सर. 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर सेंटीग्रेड. पर सेंटीग्रेड इट टेन टू बी आउट 2 इंटू 10 टू पावर -5 पर सेंटीग्रेड. ऑल राइट. यस. अब यहाँ पे पूछा है गामा क्या होगा. चूँकि आपको मास डेंसिटी चाहिए तो मतलब डेल्टा V बाई V का रेशियो चाहिए बेसिकली. गामा टेन टू बी आउट 3 अल्फ़ा. तो इट्स वैल्यू इज 6 इंटू 10 टू द पावर -5. सो व्हाट विल बी द डेल्टा V बाई V इंटू 100. इट टेन टू बी आउट यहाँ पे वैल्यू कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर -5. और गामा डेल्टा टी की वैल्यू 10 सेंटीग्रेड कितना है? गामा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई 100. गामा डेल्टा टी इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड इट्स वैल्यू इज 0.06. यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 इट्स वैल्यू इज 0.06. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पे पूछा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ. ये क्वेश्चन में भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है. क्या आसान है सर? सर करंट की डायरेक्शन ये ऐसे सर. अगर ध्यान से देखो ये वाला जो लूप है ये इसको मान लो P Q R S. ये वाला जो लूप है किधर जा रहा है? नीचे. क्या है भाई? नीचे मतलब J -J सर. तो बेसिकली जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए होता है बेटी. अब एरिया की वैल्यू सर क्या होगा? I इंटू ए इंटू बी -J. तो सर ये तो नीचे होगा. अब ये देख लो ऐसे लूप जा रही ना भाई. तो इसका पीछे होगा मतलब अगर इधर प्लस I है तो इधर -I होगा सर. तो ये M1 हो गया, ये M2. I इंटू ए बी -I कैप. तो आपके पास आंसर कौन सा है? देखो कौन सा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है. तो सर M नेट बराबर
m1 प्लस m2, तो वैल्यू टर्न टू बी आउट ऑप्शन बी IAB इंटू माइनस आई माइनस जे, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये दो क्वेश्चन का सेटअप है बेटे। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब दिया था 0.15 10 टू द पावर -3 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया था जो फ्लूइड है, और उसका सरफेस टेंशन दिया था, H पूछ रहा था, थीटा दिया था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, हाइट इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी सर 2 इंटू टी की वैल्यू 1/20, cos 60 मतलब सर 1/20 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब 0.15 10 टू द पावर -3 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया है 667 इंटू जी सर divided by 10. After solving this one you will get the value of 0.05 मीटर। कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, हाइट कितना राइज किया है कैपिलरी ट्यूब में वो बताना था। यहाँ पे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है। आपको ये पता है कि प्राइमरी से दिस वन इज द प्राइमरी सर्किट एंड दिस वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सर्किट एंड दिस गैल्वेनोमीटर विल बी बैलेंस एट 51 सेंटीमीटर। तो सिंपली यू नो द वैल्यू ऑफ EMF अक्रॉस सेकेंडरी वोल्टेज। सो वोल्टेज V/L इन नथिंग बट 1.02 डिवाइडेड बाई हाउ मच लेंथ इट विल बी बैलेंस आउट 51 सेंटीमीटर में है, ये वोल्ट है पर सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है कौन सा आंसर है, 51 इन 2 जा 102, तो इसका मतलब सर 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर में है। अच्छी बात है। कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बने हैं। मतलब थोड़ा सा अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है कि सर कैपिलरी राइज 2t cos थीटा अपान r रो जी है, तो यू कैन इजिली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है SHM से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इट इज़ गिवन द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे पोजीशन 4 ऑप्शंस दिए थे। नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू t/4। ध्यान से समझना। अब एक बात सर इसकी पोजीशन तो 0 है t/4 पे। जब पोजीशन 0 है तो आपको पता है कि क्या फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फोर्स भी 0 होगा भाई। तो सर मतलब एट यहाँ पे नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब सर ये जब मीन पोजीशन पे ही है, यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, तो ये तो सही है साहब। स्पीड एट द पार्टिकल इज 3t/4, ये भी मीन पोजीशन की बात कर रहा है। ये कॉस का ग्राफ है, मतलब सर x बराबर a cos ओमेगा t का ग्राफ है सर ये। तो ये 3t/4 सर ये भी अपनी मीन पोजीशन पे है। अब एक बात बताओ सर, फोर्स 0 होगा, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब सर ये है कि वेलोसिटी क्या है, वो मैक्सिमम होगी। मतलब ये भी बात सही बोल रहा है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पता है ना आपको, मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, देखो है कि नहीं है? है सर। अगर ये सही है तो एक्सेलरेशन t/4 पे मैक्सिमम कहीं हो सकता है क्या? भाई 0 लिखा है, ये तो गलत है। अब ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल एट t/8। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है भाई t/8 पे। आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, साहब ये आज ही पढ़ाया हूँ बच्चों को। ये है इस पॉइंट पे, आपको पता है ये जो है जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम। तो t/8 पे, यहाँ पे t/8 पे पूछ रहा है बेटे, कितने पे? t/8। तो आप वैल्यू लगा दो सर, बराबर होने के लिए हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको बराबर कर देंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी a/√2, ठीक, एंड दिस टर्न टू बी आउट ओमेगा t इक्वल टू π/4 एंड ओमेगा इक्वल टू यू नो 2π/t इंटू स्मॉल t बराबर π/4।
तो सर एक वैल्यू बताओ, पाई ने पाई को मार दिया तो टी की क्या वैल्यू आ गई, t/8। सही बोल रहा है भाई। काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए बी डी। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी डी। देयर इज ए क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई, अ क्लोज्ड बॉक्स कंटेन्स एन आइडियल गैस। क्लोज्ड बॉक्स मतलब सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, देयर आर 4 ऑप्शन गिवन कि मीन फ्री पाथ घटेगा, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम सेम होगा। आपको पता है मीन फ्री पाथ के बारे में, 1/√2 n/v पाई डी स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है, डायामीटर भी सेम है, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, सेम होगा भाई। तो मीन फ्री पाथ सेम है। लेकिन दूसरी बात, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन बढ़ेगा, देयर विल बी नंबर ऑफ कोलिजन, मोर नंबर ऑफ कोलिजन इन द मॉलिक्यूल्स। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द कोलिजन विल बी मोर। अब कोलिजन ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पास ये तो सेम है, मीन फ्री पाथ कोलिजन के बढ़ने से, इफ़ कोलिजन विल बी, सो इन दिस प्रॉब्लम लैम्डा विल बी सेम, मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी सर। तो ये ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम में क्या होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। तो ए और सी, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस वन इज डिस्क रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 and moment of inertia is given I1 and I2 respectively, and if these two discs are placed one above the, इसके ऊपर आपने एक डिस्क और रख दिया, तब ये कॉमन वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा। तो यहाँ पे पहले ओमेगा निकाल लूँ, कॉमन क्या होगा सर, I1 ω1 प्लस I2 ω2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। सर I1 की वैल्यू दिया है 0.10, ω1 दिया है 10 प्लस I2 0.02, ω2 5 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 0.10 प्लस 0.2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ओमेगा मिल जाएगा। देन ओमेगा भी टर्न टू बी आउट 20/3, 0.20, शायद 0.20 है बेटे, ये 0.20, ठीक। इट टर्न टू बी आउट 20/3। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ I1 प्लस I2, दोनों को इकट्ठा कर दिया, 0.10 प्लस 0.20 इंटू कॉमन हाफ I ओमेगा स्क्वायर। कॉमन ओमेगा कितना है भाई, 20/3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू सर 0.30/2 400/9, तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, 200। सर 2 तिहाई 6, ये 2 0 यहाँ पे, 6/2 तिहाई 6, यहाँ पे 6/9, तो ये क्या हो गया 20/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटे लास्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज हाइट h फ्रॉम द सरफेस, और डेप्थ में कह रहा है दोनों की वैल्यू सेम है। तो आपको क्या पता है सर, हाइट पे gm/r², r की जगह पे r प्लस h का होल स्क्वायर, ऊपर जाने पे साहब, नीचे जाने पे gm/r माइनस h का होल क्यूब इंटू r माइनस h। अब सर क्या है, gm ने gm को मार दिया, तो ये वैल्यू कितना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, r माइनस h का होल क्यूब, दिस टर्न टू बी आउट r प्लस h का होल स्क्वायर, r माइनस h, ये आ जाएगा आपके पास।
अब इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करते हो h के फॉर्म में, h के फॉर्म में आपके पास आर क्यूब है, सॉरी यहाँ पे आर क्यूब है, आर माइनस एच नहीं आर क्यूब है, तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आर क्यूब इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एच। अब यहाँ से h सॉल्व करोगे तो आपको h की वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व तो कर लोगे, ये वैल्यू कितनी आएगी √5 - 1 इंटू आर बाई 2। तो करेक्ट आंसर क्या है ए। तो इस तरीके से आपके पास जेई में जितने भी जो कल का पेपर था इवनिंग वाला, वो यूं कहें कि इट इज़ मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल थिंग, मैथमेटिकल थोड़ी अप्रोच देखा आपको मैथमेटिक्स और पूरा तरीके से मतलब थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग वाले शिफ्ट से थोड़ा सा अच्छा लेवल था, यूं कह सकते हो। तो मुझे उम्मीद है जितने भी क्वेश्चंस कराए गए आपको सबको समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।